Welcome students in your physics class, and my today's topic is collision. Collision is the interaction of the two bodies, and in this case one thing remain constant. There will be some changes, but one thing remain constant, that is the momentum. Momentum remains conserved throughout the collision. But students, this momentum actually will remain conserved in each and every type of the collision. Doesn't matter which type of collision will be there actually, but momentum remains conserved. Okay, here are I have taken the three types: elastic collision, inelastic collision, and partially elastic or partially inelastic collision. What is elastic collision? In case of elastic collision, two things remains conserved. One is the momentum and another one is the kinetic energy. Okay students, and this types actually on the basis of the kinetic energy. ओके यहाँ पर आप देखेंगे जो क्लासिफाइड किया गया है कॉलिजन को, वो किस बेसिस पर किया गया है? काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर किया गया है, क्योंकि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द कॉलिजन. Either the collision is elastic, or the collision is inelastic, or the collision is partially elastic or inelastic, and momentum remains conserved. But the one thing is which differentiate in each and every type actually, which is kinetic energy. इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, और इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है. ओके, और इसी तरह से आप देखेंगे पार्शियली इलास्टिक है या पार्शियली इनइलास्टिक है, इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है. क्लियर? एंड वन थिंग also you should remember actually this collision can be of two types: head on collision and oblique collision. Head on collision किस केस में होगा? When the collision is one dimensional collision, then what you will see line of motion and line of impact. If line of motion and line of impact both are on the same line, then you will say the collision is head on collision. तो यहां पर आप देखेंगे लाइन ऑफ मोशन, जिस लाइन के अलोंग दो बॉडी मूव कर रही थी, ओके, दोनों का डिफरेंट वेलोसिटी था और आपस में दोनों में कॉलिजन होता है, इंटरेक्शन होता है. ठीक है, जब ये आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, टकराने के बाद में जब मूव करती हैं आफ्टर द कॉलिजन, वो उसी लाइन के अलोंग मोशन होता है. तब उस केस में हम ये कहते हैं कि जो उसका इम्पैक्ट यानी उसी लाइन के अलोंग उनके बीच में कॉलिजन हुआ और उसी लाइन के अलोंग वो मूव करती हैं कॉलिजन के बाद, तब उस केस में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट बोथ विल बी सेम एक्चुअली. क्लियर? इसी तरह से स्टूडेंट्स हम दूसरा देखते हैं ऑब्लिक कॉलिजन क्या होता है. ऑब्लिक कॉलिजन के केस में जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है वो लाइन ऑफ मोशन से डिफर होता है. ठीक है, आप ये देखेंगे कि दो बॉडी इस तरह से मूव करती हैं. एक बॉडी है जो कि इस लाइन के अलोंग मूव करती है, दूसरी बॉडी इस लाइन के अलोंग मूव करती है, और इन दोनों का लाइन ऑफ इंपैक्ट वो ये होगा, इस लाइन पर आकर के ये दोनों कोलाइड करती हैं, टकराती हैं. ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कोलाइड करता है. ठीक है, ये देखेंगे इस ऑब्जेक्ट का ये वाला पार्ट और इस ऑब्जेक्ट का ये पार्ट आपस में कोलाइड करता है. ठीक है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती हैं और इसमें कोलिजन होता है. तो आप देखेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट, ओके, जिस लाइन पर उन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, ठीक है, तो वो लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, और कॉलिजन के बाद में जो उनका मोशन है एक्चुअली वो इस लाइन के अलोंग होता है. ठीक है, ये मोशन की लाइन है, नो लाइन ऑफ मोशन. तो इन दिस केस, इन केस ऑफ द ऑब्लिक कॉलिजन, दिस लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन, okay, is not same actually, so this is the oblique collision. Now students, I will talk about the head on elastic collision. I have taken these two bodies which having masses m1 and m2 moving with different velocities u1 and u2. They collide to each other, and after collision they move with different velocities. Okay, this mass m1 move with velocity v1, this is the final velocity of mass m1, and this v2 is the final velocity of m. So this is after collision. What you will see here, you will see, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मोमेंटम जो है वो सभी टाइप के कॉलिजन में जैसा रहता है, कंजर्व रहता है. मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व इन एवरी कॉलिजन, एवरी टाइप ऑफ कॉलिजन. तो हियर दिस वन थिंग रिमेन्स कंजर्व, one thing remains same, momentum of the system remains conserved throughout elastic collision. इसलिए यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि फिर चेंजेस क्या होते हैं. इंडिविजुअली जो मोमेंटम के अंदर है वो चेंज होता है, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस बॉडी का मोमेंटम m1 u1 है, इस बॉडी का मोमेंटम m2 u2 है. कॉलिजन के बाद में हम देखते हैं फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम अब क्या हो गया, m1 v1, और v1 कैन बी डिफरेंट फ्रॉम u1, u1 से डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, v1 की वैल्यू, इसी तरह से v2 की वैल्यू u2 से
डिफरेंट हो सकती है, इसलिए इसका मोमेंटम भी डिफर हो जाएगा, इसका मोमेंटम भी डिफरेंट होगा। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि बॉडीज का जो आपस में इंटरेक्शन के बाद में जो मोमेंटम है वो इंडिविजुअली डिफर होता है, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। सिस्टम का मोमेंटम मींस द सम ऑफ मोमेंटम, दीस टू मोमेंटम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन दोनों का सम, कॉलिजन के बाद सम के बराबर होता है, ठीक है। ओके, I have written the equation of the conservation of momentum. This m1 u1 is the momentum of the first body, m2 u2 is the momentum of second body. Okay, I have taken the sum of these two momentum here. Similarly, this m1 v1 is the momentum of first body after collision, and m2 v2 is the momentum of second body after collision, and the sum will be same. Clear? So this is the conservation of momentum. तो एक इक्वेशन आपको कंजर्वेशन मोमेंटम से, कंजर्वेशन लॉ से आपको मिलता है। सेकंड इक्वेशन हम निकालेंगे किससे, क्योंकि जो कॉलिजन हम ये ले रहे हैं वो एक परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो लेट्स सपोज योर कॉलिजन इज द आइडियल कॉलिजन। तो फॉर द आइडियल कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, एक्चुअली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कॉलिजन, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द कॉलिजन सेम नहीं होती है, क्योंकि कॉलिजन के टाइम में जब बॉडी एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, इंटरेक्शन के टाइम में उनके काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होते हैं और एनर्जी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि जो थ्रू आउट द कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, बल्कि इनिशियल और फाइनल सेम होती है उसकी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल उसके पास कुछ एनर्जी होगी बॉडीज की, सिस्टम की, ठीक है। कॉलिजन के बाद में जो फाइनली जो वो एनर्जी एक्वायर कर लेती है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के इक्वल हो जाती है, ठीक है। बीच में काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा होती है, लेकिन फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलती है वो इनिशियल के सेम मिलती है, ठीक है। तो दिस इन दिस केस एक्चुअली व्हेन द यू हैव टेकन द आइडियल इलास्टिक कॉलिजन, ओके, काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम एज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, before the collision initial kinetic energy will be half m1 u1 square plus half m2 u2 square, and after collision it will be half m1 v1 square इस सिस्टम का, और सेकंड का क्या हो जाएगा half m2 v2 square। इस तरह से हमें सेकंड इक्वेशन मिलता है इससे, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स विल टेक द ओके टेक दिस इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 राइटिंग द terms of m1 in the left hand side and m2 terms on the राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने m1 के टर्म्स ले लिए, m1 u1 है, और यहाँ ये m1 v1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा m1 कॉमन आ जाएगा और u1 माइनस v1 बचेगा, ठीक है। u1 माइनस ये टर्म इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस v1, m1 को कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग दिस m1 आउटसाइड, ओके। इसी तरह से स्टूडेंट्स m2 के टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर m2 v2 है तो m2 को कॉमन लेंगे, और यहाँ m2 u2 है तो u2 को इस तरफ लेकर आएंगे तो m2 v2 माइनस u2 हो जाएगा, क्योंकि u2 को आप इधर लेकर आ रहे हैं और वो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से हमें एक इक्वेशन ये मिलती है जिसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 से फिर से हमें वही करना है, m1 के टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो यहाँ से m1 कॉमन हो जाएगा और बचेगा हाफ, देखो हाफ सभी में आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए हाफ कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रॉम ईच एंड एवरी टर्म, ओके। नाउ here this is the term of m1, taking this along this side, okay, when you take this along this side it will be with a negative sign, so taking m1 is common and you will get u1 square and minus v1 square is equal to, similarly this is m2 is common here, v2 square, और m2 का टर्म्स इधर है, इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस u2 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपको इक्वेशन नंबर 4 मिलती है, okay students। now dividing equation number 4 by 3, when you divide this equation by this one, so what you will see this m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये m2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में बचेगा आपको u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, अपॉन में मिलेगा आपको u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार ऐड होता है, एक बार सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर u1 प्लस v1 हो जाएगा इंटू u1 माइनस v1। आपको मालूम है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, क्लियर। उसी को हमने यहाँ यूज किया, अपॉन में u1 माइनस v1 है इज इक्वल टू, इसको भी हम वैसे लिखेंगे आइडेंटिटी का यूज करके, v1 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर है तो v2 प्लस u2 प्लस इनटू v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस u2। अब यहाँ पर आप देखिएगा नेगेटिव वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस तरह से बचेगा आपके पास u1 प्लस v1
इस साइड में इज इक्वल टू इस साइड आपको मिलेगा v2 प्लस v2 एंड फाइनली यहाँ पर हम u1 के टर्म्स को इनिशियल वेलोसिटीज को साथ ले लेते हैं, तो u1 माइनस u2 को इधर लेकर आएंगे माइनस v2 हो जाएगा। इसी तरह से दिस इज v2, v1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो v1 एंड व्हाट इज दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। लिख लीजिए इसको। Okay students, now I have taken here some numericals based on these equations here, which we have got it from the conservation laws. One equation we have got it from the conservation of momentum and second one we have got it from conservation of kinetic energy. तो अभी जो आपको मिला है इक्वेशन जो मिली है, ठीक है, उसका हम यूज करेंगे कंजर्वेशन मोमेंटम का और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक डायरेक्ट प्रोसेस है, उसके बाद मैं आपको फार्मूलेज से किस तरह से निकालते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ क्वेश्चन है फाइंड v1 एंड v2, दीज आर द फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, okay, you will find v1 and v2 and v1 and v2 are the final velocities after collision. So I have taken here two bodies, they will collide to each other, okay, and after collision the velocities acquired by these bodies that will be v1 and v2, ये आपको फाइंड करना है what will the velocities after collision. तो यहाँ देखेंगे इनिशियली जो बॉडी है उसका मास 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम बॉडीज का मास दिया हुआ है। अच्छा, मासेस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं ये मासेस एज इट इज रहेगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है उनसे, मैं इसको देखता हूँ एक मिनट। 5 माइनस 2, u1 दिया है 5 और u2 है आपका 2, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन में इस तरह से दिया है बॉडीज का इनिशियल मास जो है वो 2 किलोग्राम है, सेकंड का 3 किलोग्राम है और आफ्टर कोलिजन मासेस में भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये 5 किलोग्राम का हो जाता है बॉडी, सेकंड फर्स्ट बॉडी और 3 किलोग्राम, इस तरह से मासेस में चेंज होते हैं इंटरेक्शन के बाद में, ठीक है। और वेलोसिटीज गिवन है आपको, इनिशियल वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी का 5 मीटर पर सेकंड और सेकंड का है 2 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटीज आपको निकालना है v1 और v2, ओके, बिकॉज द कोलिजन इज इलास्टिक, सो इलास्टिक कोलिजन में हमें मालूम है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। क्लियर, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इस इक्वेशन का हम यूज करके निकाल सकते हैं इसमें, ये बिकॉज u1 इज व्हाट 5 एंड माइनस u2 इज 2 इज इक्वल टू v2 इज v2 फाइंड करना है, v1 भी फाइंड करना है, v2 माइनस v1। इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिलती है बाय रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। इसके बाद में हम यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इक्वेशन ये मिलेगी आपको, और मास कितना दिया हुआ है, m1 इज 2 और u1 इज 5, इसी तरह से m2 इज 3 एंड u2 इज 2 इज इक्वल टू m1 इज 5 एंड v1 एंड प्लस 3 v2। क्लियर, एंड इट बिकम्स व्हाट 2 5 10 प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 5 v1 प्लस 3 v2 and finally you will get 5 v1 plus 3 v2 is equal to 16। second equation आपको ये मिलता है। now students will multiply by 5 to equation number 1। equation number 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम कुछ इसमें ऑपरेशंस करते हैं, तो 5 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 5 v2 minus 5 v1, 5 3 is 15, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज रखना है, 5 v1 plus 3 v2 is equal to 16। ये दो इक्वेशन आपको मिलती है, ठीक है। इक्वेशन 2 आपका ये हो गया, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये ऐड करना है, तो ऐड करने पर ये प्लस का है, एक मिनट, ये प्लस का है 5 v1 और ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस के आपको 8 v2 मिलेगा इज इक्वल टू 31 हो जाएगा। फाइनली v2 इज इक्वल टू 31/8 मीटर पर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू v2 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो आपको v1 मिल जाएगा, ठीक है। 31/8 माइनस v1 इज इक्वल टू 3 एंड v1 इज इक्वल टू 31/8 और 3 को इधर लेकर आएंगे, v1 को इधर लेके जाएंगे, तो 3/1 ले लेंगे एलसीएम लेने के लिए, तो इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 3 24 हो गया, माइनस 31 माइनस 24 7/8 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आपको v1 और v2 की वैल्यू मिल जाती है। v1 आपका मिला, v1 कितना मिला 7/8 और व्हाट इज v2 एंड v2 इज 31/8
8। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, फाइनल वेलोसिटीज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ मास। मास की वैल्यू निकालनी है। इलास्टिक कॉलिजन है, टू बॉडीज हैं मूविंग, वन बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी u एंड सेकंड बॉडी इज इन रेस्ट। तो यहाँ इनमें कॉलिजन होगा क्योंकि ये वेलोसिटी ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, जब ये कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद में हम देखेंगे कि जो फर्स्ट बॉडी है वो इससे टकराने के बाद में वापस अपोजिट डायरेक्शन में u/3 से मूव करती है। नहीं, जिस वेलोसिटी से वो आ रही थी, ओके, ठीक है, उससे 3 गुना कम से वो फिर मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन से वो आई थी उस डायरेक्शन, जस्ट बैक डायरेक्शन में वो मूव करती है। ठीक है, कॉलिजन के बाद में। ठीक है, तो हमें इस बॉडी का मास निकालना है, जिस बॉडी से ये टकराई थी उस बॉडी का मास कितना है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि जब इससे टकराती है, टकराने के बाद में, कॉलिजन के बाद में ये भी मूव करती है कुछ वेलोसिटी से, और उस वेलोसिटी को आपने ले लिया v। तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करती है, और ये इससे टकराने के बाद वापस इस डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, u/3 से। तो इलास्टिक कॉलिजन में हमें मालूम है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। इसी का हम यूज करेंगे, u1 - u2 = v2 - v1, और u1 इज व्हाट, u इनिशियल वेलोसिटी, माइनस u2 रेस्ट में है तो 0 हो जाएगा। v2 इज दिस वन। ठीक है, सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। तो सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v है, तो v हम लिखेंगे, माइनस v1 u/3 है। अब क्योंकि इसका और इसका दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो u/3 का को हम माइनस साइन के साथ लेंगे, माइनस u/3। ठीक है, v को आपने इस डायरेक्शन में लिया तो प्लस लिया है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए हम माइनस साइन लेंगे, u/3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस u/3 होगा, u/3 को इधर लेकर आएंगे तो u - u/3 = v होगा, v = 2u/3 हो जाएगा सिंपली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक्चुअली हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं A B C D। A 2 किलोग्राम है, B 1.5 किलोग्राम है, C 3 किलोग्राम है, D 2.5 किलोग्राम है। तो हमें निकालना है which one is correct। Now you will use the conservation law of momentum। m1 v1 plus m2 u2 is equal to m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। उसका हमें यूज करना है। तो m1 is 1 किलोग्राम और u1 is u प्लस सेकंड तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 है, is equal to m1 v1, m1 1 किलोग्राम, ठीक है, और v1 is माइनस u/3 एंड प्लस m2 is m और v2 is v। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा माइनस u/3 प्लस m। v की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, v is 2u/3, 2u/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m/3। क्लियर, u से u कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो u जो है वो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा सभी में से। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल टू माइनस 1/3 बचेगा, प्लस इसमें बचेगा आपको 2m/3। और इसको, इस पूरा इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 हो जाएगा, माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2m बचेगा। ठीक है, तो फाइनली 2m इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। ये आपका आंसर हो गया। व्हिच वन इज करेक्ट? योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। Okay, now come to the next question is find the value of v1 and v2. Again we are going to find out the final velocities, okay, after collision. So these two bodies, one is of 2 kilogram and second is 1 kilogram, moving with different velocities. This moving at 2 meter per second, this moving 1 meter per second. After collision, okay, the velocity becomes of the first body is v1 and the velocity of the second body becomes v2. Okay, collision is elastic. Then this question you will find, okay, this is your homework. ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल और उसी के बेस्ड है, उसी पर बेस्ड है जो अभी हमने न्यूमेरिकल्स कराए हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं। तो डू दिस क्वेश्चन, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, E. व्हाट इज दिस E एक्चुअली? दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओके वैल्यू एक्चुअली। दिस गिव्स यू दिस टेल्स अबाउट द टाइप्स ऑफ द कोलिजन, यू नो कि व्हिच टाइप ऑफ द कोलिजन विल बी देयर एक्चुअली। तो इससे आपको मालूम होता है, अगर आप रेस्टिट्यूशन फाइंड कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करके आपको ये पता कर लेते हैं कि कॉलिजन किस टाइप का है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या पार्शियली इलास्टिक है, या पार्शियली इनइलास्टिक कॉलिजन है। ठीक है, तो इससे हमें कॉलिजन का टाइप मालूम होता है रेस्टिट्यूशन से। ओके, तो इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम E से डिनोट करते हैं, और E जो है वो रेशियो होता है किसका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा है आपका u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। यहाँ ये जो है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वेलोसिटी होती है
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो वेलोसिटी है दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये आपको याद रखना है, u1 माइनस u2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अप्रोच मींस वो कॉलिजन होने के लिए जा रहे हैं, इंटरेक्शन उनके बीच में होने जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी इंटरेक्शन के लिए जो वेलोसिटी है, इंटरेक्शन तक पहुंचाने के लिए जो वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं u1 माइनस, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी जिससे उनके बीच में इंटरेक्शन होने जा रहा होता है एक्चुअली। और उसके बाद में इंटरेक्शन के बाद में उनके बीच में क्या होता है, सेपरेशन होता है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड व्हिच इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, दिस ई इज द रेशियो ऑफ इन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिफोर कॉलिजन, ठीक है, एंड रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, ओके। 1 मिनट, एक करेक्शन है यहाँ कर लीजिएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन होगा और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिफोर कॉलिजन। जैसे कि मैंने बताया था, जो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो सेपरेशन के केस में क्या है, आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन, ठीक। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, if you given e is equal to 1 it means what actually, अगर सपोज करिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन 1 है तब उस केस में कॉलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा, बिकॉज़ दिस रेस्ट्रिक्शन टेल यू अबाउट द टाइप ऑफ कॉलिजन, ओके। तो फॉर इलास्टिक कॉलिजन e is equal to 1 होता है और फॉर इनइलास्टिक कॉलिजन e is equal to 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन में आपको मालूम है रिलेटिव वेलोसिटीज इक्वल होती हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन विल बी इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, ओके, दिस दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दिस वन एंड दिस वन, आपको 1 मिलेगा तो इज इक्वल टू 1 हो जाता है। इलास्टिक कॉलिजन के लिए e 0 होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस e इज 99% केसेस में जो है e की वैल्यू लेस देन होगी और इक्वल भी हो सकती है, किसके 1 से ज्यादा नहीं होती है, e की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है, उससे कम हो सकती है या फिर उसके इक्वल हो सकती है। और इक्वल किस केस में होगी, इक्वल सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के केस में ही इक्वल होगी, ठीक है, एक आइडियल कॉलिजन के केस में, ठीक है। फॉर पार्शियली इलास्टिक और इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, e मोर देन होगा 0 से और लेस देन होगा 1 से, क्लियर। देयर आर सम इंपॉर्टेंट सिचुएशंस ऑब्जर्व्ड इन इलास्टिक कॉलिजन। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज हमने निकाली थी इससे पहले v1 v2 निकालने के लिए, क्या कोई फॉर्मूला होता है तो हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, और फॉर्मूले का भी यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वो मैंने बताया था, उसमें आप जो है डायरेक्ट वे में आप उसमें क्या करते थे, उसमें आप इक्वेशंस का यूज करते थे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके आप उसको फाइंड करते थे। यहाँ पर आपको फॉर्मूलेज गिवन हैं v1 और v2 फाइनल वेलोसिटीज के, जिसको यूज करके आप डायरेक्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए क्या करते हैं, आई हैव टेकन हियर इलास्टिक कॉलिजन, ओके। तो दीज आर टू बॉडीज which moving different velocities u1 u2 and they collide to each other, and after collision they will move with different velocities. Let's suppose v1 and v2 are the final velocities of m1 and m2, clear. What is the first condition? The first condition is for the elastic case, relative velocity before collision equals to होता है relative velocity after collision, means u1 minus u2 is equal to v2 minus v1, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, v2 को ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं, v2 को हमने सब्जेक्ट लिया तो v2 is equal to u1 minus u2 plus v1 हो गया, यानी कि हम v2 को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ v1। तो हमने v2 को इन टर्म्स ऑफ v1 हमने लिख लिया, u1 minus u2 और v1 को इधर लेकर आएंगे प्लस v1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यूज करेंगे कंजर्वेशन लॉ का, कंजर्वेशन मोमेंटम का हम यूज करेंगे इसमें, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, ओके। इसमें हम करते क्या है एक्चुअली, v2 की वैल्यू जो आपने यहाँ निकाली है इसको हम पुट करेंगे इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो m1 u1 m2 u2 एज इट इज रहेगा, m1 v1 plus m2 v2 की वैल्यू u1 minus u2 plus v1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m2 u1 minus m2 u2 plus m2 v1, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद स्टूडेंट्स हम करते क्या है, इसके बाद हम u1 के टर्म्स को, ठीक है, इधर हम v1 के टर्म्स ले लेते हैं, इधर v1 के टर्म, क्योंकि हमें v1 निकालना है, v1 को सब्जेक्ट मानना है, तो v1 को सब्जेक्ट लेंगे तो बाकी टर्म्स को आप किसी एक साइड लेके जाइएगा और v1 के टर्म्स को एक साइड रखना है, ठीक है। तो v1 के सिर्फ दो ही टर्म है, एक टर्म तो ये है v1 का और दूसरा टर्म ये है, तो इसको हम इसी साइड रखते हैं
और इसमें भी v1 कॉमन आ रहा है तो v1 को कॉमन ले लेंगे और m1 प्लस m2 ये मिलेगा, ठीक है। बाकी जितने भी टर्म्स है जैसे ये टर्म है इसको हम इधर लेकर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है m1 u1, ठीक है, और m1 u1 है और m1 u1 के साथ में u1 वाला टर्म लेंगे m2 u1, ठीक है, और इसको लेंगे इधर तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा m2 u1, ठीक है। इसी तरह से m2 u2 के साथ में u2 वाला टर्म लेंगे जो कि इधर है और ये माइनस का है इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा m2 u2, और इसमें हम दोनों में ही जो है इसमें u1 कॉमन ले लेंगे, इसमें u2 कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन कुछ नहीं है ये तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा m2 u2 प्लस m2 u2 2 m2 u2 हो जाएगा और यहाँ पर u1 कॉमन आकर के m1 माइनस m2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिला था m1 प्लस m2 जिसको अपॉन में लेकर आएंगे तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1 हो जाएगा, ठीक। तो v1 इज इक्वल टू फाइनली आपको मिलता है, इसको जब इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे किससे m1 प्लस m2 से तो आपको मिलेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो u1, इसको फिर इससे डिवाइड करेंगे इसमें इस, ठीक है, इंडिविजुअली डिवाइड कर रहे हैं ना m1 प्लस m2 से, एक बार इसके लिए ले लिया इसको डिवाइड किया, एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, इंडिविजुअली आपने इसको ले लिया, ठीक है, सेपरेट कर लिया दो टर्म्स को। क्लियर, आप इसको साथ में भी ले सकते हैं और अलग अलग करके भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये दो टर्म्स आपको मिलते हैं, ओके, और दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल वेलोसिटी, ओके, v1। इसी तरह से हम v2 भी निकाल लेते हैं, तो v2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली रिप्लेस कर देते हैं m1 को m2 से, m2 को m1 से, इसको रिप्लेस करेंगे m2 हो जाएगा, यहाँ ये m1 हो जाएगा तो बात एक ही बनेगी क्योंकि प्लस साइन है, m1 प्लस m2 लिख लीजिए, m2 प्लस m1 लिख लीजिएगा, और u1 को u2 से रिप्लेस कर देंगे प्लस, इस तरह से ट्वाइस m2 है तो इसको m1 ले लेंगे, ये u2 है तो यहाँ u1 आ जाएगा, यहाँ पर u1 आ जाएगा स्टूडेंट, ये u1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और अपॉन में m2 प्लस m1 होगा तो m1 प्लस m2 हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इसका हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।